Jai Hind students. Today's our video lesson is on determination of equilibrium level of income, output and employment. Okay, or this is also called short run equilibrium output. Okay, basically we are already discussed about the all related concept of this determination of equilibrium level of income and output. Okay, like concept of ADAS, concept of propensity to consume, propensity to save. Okay, and relationship between APC, MPC, all these. Okay, now we are starting this important topic, which is very important, and the purpose is to study all related concept of this topic is only to understand this important concept. Okay students, so let us start about this topic, determination of equilibrium level of income, output and employment, right? Before starting this topic, first you understand about the basic historical aspects of study this concept. Okay, basically this topic is also known as the Keynesian theory. According to your syllabus, this is known as Keynesian theory. Keynesian theory of income and employment. ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स बताने का पर्पस ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे अराइज हुआ. तो बेसिकली there are the two different group of studies of economics. Number one, that is classical theory, and number two, Keynesian theory. और ये जो दोनों थ्योरीज हैं ये कैसे आई, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है, उसको मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ आपको. इन द ईयर 1929 and 30, this year is called year of Great Depression. ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. अब ये ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज बिफोर दिस ईयर आवर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी मीन्स द फॉलोअर्स ऑफ द इकोनॉमिस्ट who assume that some assumptions that the economy is always in equilibrium, there is no excess or deficient demand in the economy, and there is no intervention of the government. Okay, and economy run always in the equilibrium position. Okay, but in 1929-30 this classical theory totally crashed, and the assumptions of this theory totally not applicable in that situation. That is, economy is always in equilibrium, because in this year face the problem of Great Depression. Okay, so a great economist named as J.M. Keynes, ये ब्रिटेन के एक इकोनॉमिस्ट थे, J.M. Keynes. इन्होंने इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब ये हुआ कि
इकोनॉमी में इतना ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो चुका था और मार्केट में वो प्रोडक्शन बिक नहीं रहा था, तो दैट सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो कीन्स ने क्योंकि जो एक इस क्लासिकल थ्योरी का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मोटो था, जो जिस पर ये पूरी थ्योरी बेस्ड थी, उसका मोटो था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये एक इकोनॉमिस्ट थे जेबी से एक इकोनॉमिस्ट थे। दिस इकोनॉमिस्ट जेबी से इज कॉल्ड द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की कि मार्केट में कभी भी एक्सेस सप्लाई नहीं हो सकती। मीन्स सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब कि अगर मार्केट में प्रोडक्शन होता जाए तो उसकी ऑटोमेटिक डिमांड जनरेट होती जाएगी और कभी भी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन नहीं आएगी। मीन्स इकोनॉमी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट जेवी से, एंड this classical economist is classical theory is based on the statement of this economist JB say, that is supply creates its own demand. Means economy is always in equilibrium. Okay, but in 1929-30 this concept is totally crashed. That is not run in that time, that create the problem of Great Depression. So Professor James Keynes ने इस क्लासिकल थ्योरीज को पूरी तरीके से अपोज किया और एक अपनी खुद की थ्योरी डेवलप की, और उस थ्योरी को कहा गया कीन्सियन थ्योरी। और वो सारे इकोनॉमिस्ट जो कीन्स के थॉट्स को फॉलो करने वाले थे, उससे एग्री करने वाले थे, ऑल दोज इकोनॉमिस्ट आर कॉल्ड कीन्सियन इकोनॉमिस्ट। राइट स्टूडेंट्स? सो दिस इज प्रोफेसर जेएम कीन्स ने इस क्लासिकल थ्योरी या फिर ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी। दैट बुक नेम वाज जनरल theory of income and employment। जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 1936 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और इस बुक में उन्होंने वो तमाम तरीके के स्टेप्स और तमाम तरीके के वो सारे कॉजेस को एक्सप्लेन किया जो उस ग्रेट डिप्रेशन के कारण थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ये जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, वो कीन्सियन थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाली एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक थी, जिसमें ये तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट्स को और उस समय की प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक उन्होंने एक कॉन्सेप्ट या थ्योरी दी उस समय के वर्ल्ड वाइड सिचुएशन को डील करने के लिए। और ये पूरी जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड कीन्सियन थ्योरी। बच्चों, आपको आपके सिलेबस में क्लासिकल थ्योरी नहीं पढ़नी है। कीन्सियन थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है कि कीन्स ने बेसिकली उस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने के लिए जो ये थ्योरी दी, उसके क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं और क्या वो सिचुएशन थी जिससे बाहर आने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया। राइट? तो दिस कीन्सियन थ्योरी इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ओके, so let us start about this concept, determination of equilibrium level of income, output and employment according to the Keynesian theory. Right? First, starting this concept, first you understand about the basic assumptions of this theory. Okay, this
assumptions of short run equilibrium output. Assumptions का मतलब what are the basic things on which the whole theory is based, right? तो इसको समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि जो हम लोगों ने इस टॉपिक को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनका हम इसमें यूज करेंगे। तो जो इस थ्योरी के जो बेसिक एजम्पशंस थे वो क्या हैं? फर्स्ट लेट अस सी हियर। पहली जो एजम्पशन है कि द इकोनॉमी इज टू सेक्टर इकोनॉमी। कीन्स ने एज्यूम कर रखा था कि इकोनॉमी इज टू सेक्टर इकोनॉमी और सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी, राइट? और सिंपल इकोनॉमी का मतलब आप समझते हो जिसमें ओनली हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर का रोल हो, राइट? नंबर 2, दूसरा जो इस कीन्स ने एज्यूम किया था कि द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज investment expenditure is autonomous का मतलब आपको मैंने इसके पहले पढ़ाया था कि इन्वेस्टमेंट इज अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक इन्वेस्टमेंट मे बी 2 types, autonomous investment and induced investment. Autonomous investment is not depend upon the level of income. Okay, so this is done by the government. Okay, that is not depend upon the profit or level of income, right? तीसरा जो एजम्पशन इस थ्योरी में कीन्स ने एज्यूम किया दैट इज प्राइस लेवल। ओके, प्राइस लेवल इज remain constant in the economy. ये प्राइस लेवल की बात भी हम लोगों ने कर चुके हैं। प्राइस लेवल मीन्स द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी and that remain constant in the economy, which is assumed by the Keynes, and this price level basically depend upon the aggregate demand. If aggregate demand is increases, then this price level will also increases. This is a positive relation, और इसके बारे में हम लोगों ने aggregate demand को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि this aggregate demand can be studies on the basis of 2 component. Number 1 on the basis of level of income in the economy, and number 2 on the basis of the price level in the economy. With the price level of economy, this AD have the positive relation, and on the basis of level of income, this AD have the what? That is also having the some extent that is positive relation. Okay, as income increases, the whole aggregate demand in the economy will also increases. Okay, but in the price level that have the negative relation, right? This is same as the demand. Suppose this is a price level and this is the demand. Okay, this have the negative relation. If demand increases, the price level will decreases. यानी कि प्राइस लेवल और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन। बट यहाँ पर जो पर्पज है हमारा, जो कीन्स ने एज्यूम किया है, दैट इज रिमेन कांस्टेंट, राइट? एंड थर्ड वन इज दैट इज द स्टडी ऑफ दिस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट दैट इज बेस्ड ऑन द शॉर्ट रन पीरियड।
this equilibrium output is to be determined in the context of शॉर्ट रन. बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग पीरियड्स की बात करते हैं. उसमें शॉर्ट रन पीरियड होता है, लॉन्ग रन पीरियड होता है और वेरी शॉर्ट रन पीरियड होता है. तो दिस होल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द शॉर्ट रन पीरियड. ओके, तो इसमें ये 4 एजम्पशंस हैं जिसको हमको एक दिमाग में रखना है, जिस पर ये पूरी थ्योरी बेस्ड है. नंबर 1, दैट इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी. नंबर 2, investment which is autonomous investment, that is not depend upon the level of income. Then price level is remain constant, and equilibrium output is determined in the context of short run, यानी कि that is a short run equilibrium output. Okay बच्चों, तो these are the some basic assumptions of this theory. Okay. These assumptions enable you to understand this theory very well, right? Let us move to next. Keynesian theory, that is based on 2 different approaches. Okay, and these 2 different approaches which can be studies. But the major component of study this concept, that is determination of equilibrium level of income. First you understand equilibrium level of income output and employment. इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए कि अकॉर्डिंग टू द केन्स ने क्या एज्यूम किया था कि अगर लेवल ऑफ इकोनॉमी में जो इनकम लेवल होगा दैट इज ऑलवेज आइडेंटिकल टू आउटपुट, ऑल्सो आइडेंटिकल टू एम्प्लॉयमेंट. मतलब ये कि इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं. एज इनकम इंक्रीजेस द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी इज आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजेस दैट increase the level of employment in the economy. Means all these 3 part having the positive relation. Okay, मतलब कि if we say that level of income in the economy is increased, that means output increases. Output का मतलब होता है यहाँ पे production. Okay, production increases, और if production increases that extended that the employment is also increases. राइट स्टूडेंट्स, तो एक ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको बहुत जानना जरूरी है. दूसरी चीज जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है दैट इज अ सिचुएशन ऑफ बैलेंस. इक्विलिब्रियम का मतलब है सिचुएशन ऑफ बैलेंस. अब किस चीज का? जैसे हम इनकम आउटपुट की बात करते हैं, इनकम आपको मैंने जब समझाया था, दिस इनकम दैट इज एग्रीगेट सप्लाई. तो जो हम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. तो दिस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द वेयर एडी इज इक्वल टू एएस. ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. और दिस इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो. तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड through the equilibrium between the AD and AS. ओके, अब ऑलरेडी आपने AD के बारे में पढ़ रखा है कि AD हैव द 2 कंपोनेंट C प्लस I,
और दिस टू कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द टू सेक्टर इकोनॉमी। और हमारा एजम्पशन भी यही है कि इस कीन्स ने जो टू सेक्टर इकोनॉमी में को मान रखा है, दिस मीन्स AD हैव द टू कंपोनेंट C plus I and this AS have the two components C plus S. Okay, if we put this these two values, we will get C plus I equal to C plus S. अब अगर ये चीज आप C plus I और ये C और C ये कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स I इज इक्वल टू S, या इसको आप कह सकते हैं S इज इक्वल टू I। ये S इज इक्वल टू I और दिस AD इज इक्वल टू AS, ये बोथ आर द सेम थिंग, राइट। AD इज इक्वल टू AS shows the equilibrium in the economy, and this can be modified according to this, and this is S is equal to I, that means both are the same thing, right students? So according to this whole discussion, you have two approaches to study this determination of equilibrium level of income and output. Okay, so understand here, there is two approaches. There are two approaches for determination of equilibrium level. Equilibrium level of what? Output and income. Okay, number one, this that is called ADAS approach, right students? ADAS approach, this is a approach to study about the determination of equilibrium level of income and output. And number two, that is called SI approach, right? So these are the two different approaches to study about the determination of equilibrium level of income and output, right students? So these two approaches is very very important, and we will proceed to discuss each one in detail, and what are the important parts, components of each approaches. Okay, so let us move to discuss one by one about these two approaches. मेरे दिस होल डिस्कशन का जो पर्पस है उसमें मैंने दो चीज़ें आपको बताई, फिर से एक बार आप समझिए कि आवर टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, या इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसके बारे में पहले मैंने आपको दिस ब्रीफ में एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स बताया कि ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है क्या, और ये कैसे हमारे इस स्टडी में शामिल हुआ, उसके बारे में मैंने एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताया। इसमें जो J.M. कीन्स का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को समझने के पीछे आपको इनका नाम याद रखना है, क्योंकि दिस होल थ्योरी इज ऑफ प्रोफेसर J.M. कीन्स, या इसको कहा जाता है कीन्सियन थ्योरी, और इनकी ये जो बुक है इसके बारे में भी आपको इसका नाम याद रखना है, और ये कब पब्लिश हुई? 1936 में। और इसके बाद मैंने आपको इसके बारे में बताया कि व्हाट आर द बेसिक एजम्पशंस ऑफ दिस डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। उसमें ये मैंने 4 एजम्पशंस बताए। ओके, चारों एजम्पशंस को आपको समझ लेना है, जिस पर ये पूरी थ्योरी बेस्ड है। और इसके बाद मैंने आपको इसमें जो बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द कीन्स का मतलब था कि दिस इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव where income is equal to output is equal to employment, and all the three components are the same. And equilibrium means where AD is equal to AS, or this further modified as we get S is equal to I, and S is equal to I is the same condition to achieve the equilibrium level in the economy as AD is equal to AS. इसका मतलब है कि there are the two different approaches to study this level of equilibrium, right? So
ADAS approach and SI approach are the two important approach to study this concept. So we will proceed to study each approaches in detail. Okay, चलिए अब हम this approach first start about the ADAS approach. ADAS approach, ये ADAS approach क्या है? ADAS approach to study about the determination of equilibrium level of income and output. Okay students, तो इस अप्रोच के बारे में पहले समझिए कि अकॉर्डिंग टू कीन्सियन थ्योरी, आपका सिलेबस ही कीन्सियन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी है ही नहीं. अकॉर्डिंग टू द कीन्सियन थ्योरी, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, द इक्विलिब्रियम level of income and output, both are the same thing, is determined when AD is equal to AS. this okay, कहने का मतलब है अंडर ADAS अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड व्हेन AD इज इक्वल टू AS. राइट स्टूडेंट्स, एंड you have already studied about it. Means you can say simply equilibrium level dash tends to AD is equal to AS. Okay, इसका मतलब है to establish the equilibrium level of income and output in the economy, the equality between the AD and AS must be required. Okay, and it means these are the two important factors which determine the equilibrium in the economy. Number one, AD is the important factor, and number two, AS is the second important factor. और इनके बारे में ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि AD का मतलब क्या है, AS का मतलब क्या है. AD के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और इट मीन्स दैट इज अ डिजायर्ड एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. और इसी तरीके से इस AS के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, दैट इज डिजायर्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज पर प्लान बाय प्रोड्यूसर. राइट स्टूडेंट्स, ये इन दोनों की मीनिंग है जो इसको मैं सिंपली एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट के रूप में यहाँ पे बता रहा हूँ. AD means desired expenditure or domestically produced goods and services in the economy, and this desired flow of goods and or this is also identical to income generation. ये भी मैंने आपको उस समय बताया था, income generation. और इसका मतलब ये हुआ कि AS can be identical to income Y, और this income have the two components C plus S. ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. और AD के बारे में भी एट द सेम वे, AD इज इक्वल टू C plus I, हैविंग द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी. ओके, सो अंडर ADAS अप्रोच you understand about the two important component AD and AS. ओके, यहाँ पर AD जो डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है या डिजायर्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, दिस डिजायर्ड का कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड का मतलब होता है प्लान्ड और डिजायर्ड. इट मीन्स इट यू कैन से दिस एक्स एंड AD एंड दिस एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई. ओके, चलिए अब हम इतना समझने के बाद थोड़ा सा इस पे और एलैबोरेट करिए, क्योंकि दिस AD इज हैविंग द टू कंपोनेंट एंड दिस AS हैविंग द टू
component CSS. This C, first explain about these C का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और दिस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. ये ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा चुका हूं जब कंजम्पशन फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा है. एंड इट मीन्स सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड दैट हैव द पॉजिटिव रिलेशन. ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज आई. अभी जस्ट आपको मैंने इस एजम्पशंस में बताया कि अंडर द Keynesian theory, Keynes assumed that this investment is autonomous investment. Autonomous investment का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि this is free from the level of income. मिसला का मतलब ये हुआ कि this I is IA, या इसको आप डिनोट कर सकते हैं I बार. जिस तरीके से ऑटोनोमस कंजम्पशन था, यानी इस अगर सपोज दिस जो कंजम्पशन फंक्शन है जिसको कंजम्पशन इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहां पर ये C बार इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन और अकॉर्डिंग टू द कीन्स हियर I इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दैट इज I बार आर IA. राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब इस एग्रीगेट सप्लाई के रिस्पेक्ट में दिस एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द लेवल ऑफ इनकम और दिस AS इज अ 45 डिग्री लाइन. Okay, starting from origin. ये AS कर्व को हमने ड्रॉ करके दिखाया था. जस्ट रिकॉल हियर कि व्हाट इज द शेप ऑफ AS हियर. अगर आप इधर इनकम लेवल को दिखाएं Y और इधर AS को दिखाएं तो आपको एक 45 डिग्री की लाइन मिलेगी. दिस 45 डिग्री लाइन, दिस इज कॉल्ड AS लाइन या इनकम लाइन. राइट स्टूडेंट्स, और इस AD के शेप के बारे में रिकॉल करिए. AD के शेप को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. फिर से एक बार इसको रिकॉल करिए. इधर लेवल ऑफ इनकम, इधर AD. तो जो AD है दैट इज हैविंग द कंपोनेंट ऑफ C एंड I. और अगर आप इसको दिखाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का AD का जो शेप है वो इस तरीके का मिलेगा. दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, दैट इज AD या डिनोटेड एज C प्लस I. ओके, दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम द Y एक्सेस. राइट स्टूडेंट्स, तो this under this AD-AS approach we explain here that the equilibrium level can be achieved through the equality between the AD and AS. Then further we explain about the these two components AD, what is AD and what this AD having the component and how these component having the relation with the level of income. Okay. Just here I explain here this consumption is having the positive relation and this investment which is autonomous investment which is free from the level of income. Okay, this is always constant and incurred by the government. फिर हमने AS के बारे में बताया कि this AS is the flow of goods and services where as increase in the output level or production that the income generation will also increases. So this AS is identical to level of income and this level of income having the two component that is consumption expenditure and saving. Okay, and this AS curve is always 45 degree line starting from the origin and this is upward sloping line. Okay, and this AD is also the upward sloping line but having the two components C and I. Right students, चलिए अब हम दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द शेड्यूल एंड आल्सो डायग्राम. राइट स्टूडेंट, चलिए तो अब दिस AD-AS शेड्यूल दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द AD-AS शेड्यूल. अभी तक आपको मैंने इससे रिलेटेड जो इसके जो मेन कंपोनेंट हैं जो these two components is responsible to set up the equilibrium level in the economy. So we explain each one. AD के बारे में और AS के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया. अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को
अब अगर सपोज करो दिस ए डी ए एस जहां इक्वल होंगे, कहाँ इक्वल होंगे, अगर इसको ग्राफिकली अगर आप आगे बताएं तो इसमें हमने एक इक्वलिटी को, अगर अब यहीं पे थोड़ा सा समझ लो आप कि सपोज दिस इज ए एस लाइन, तो इक्वलिटी कहाँ होगी, जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो दिस इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। बट इस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली हम इस तरीके से दिखा पाएंगे, बट इसको शेड्यूल के थ्रू, न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम किस तरीके से इसको बताते हैं, इसको मैं आगे डायग्राम में भी और न्यूमेरिकली कैसे इसको इकोनॉमी में ये स्ट्रक करता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट थ्रू एडीएस अप्रोच, इसको हम लोग शेड्यूल के थ्रू भी समझेंगे। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एडीएस शेड्यूल। एडीएस शेड्यूल को समझने के लिए आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ओके, और उस टेबल के थ्रू ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एट which लेवल ऑफ इनकम these two component AD and AS are equal to each other. तो first draw and understand about this drawing of the schedule. Okay students, first we let the level of income Y in the economy, right? Then consumption level, okay, then we can find we can let the investment. These are the three essential components to assume, right students? See here, Y and C, these are the two independent component which are already discussed in the consumption function. As income increases, this consumption will also increases. By assuming this concept, you can let the different level of income, suppose this 0 and suppose मैं इसको ले रहा हूँ 50, 100, 150, 200, 250 and 300. Okay, these are the increasing level of income in the economy. Okay, और मैं कंजम्पशन की वैल्यू किस तरीके से लूंगा, इसको आप समझना है, आपको ये शेड्यूल ड्रा करना आना चाहिए। इनकम इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 50, ये शेड्यूल में आपको समझ में आ रहा है कि इनकम जो है किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, 50, 100, 150 के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आपको मैंने बताया था फंडामेंटल ऑफ कंजम्पशन आर अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन फंक्शन, as income increases, consumption increases, but the rate of increase in the consumption will always less than the rate of increase in income. And at the level of zero level of income, consumption never be zero. Okay, and it has some minimum amount that is called autonomous consumption. Okay students, suppose this minimum level of consumption is 50, then 75, then 100, okay, then 125, then 150, then 200, sorry, 175 and then 200। इसमें आपको जो क्राइटेरिया है वो आपको समझ लेना है कि इसको इनकम को हमने 50 की रेट से इंक्रीज किया, कंजम्पशन को हमने 25 की रेट से इंक्रीज किया। देखिए 50 में 25, 75, देन 100, 125, राइट स्टूडेंट। ये यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट को क्यों लिया, क्योंकि इनकम इज ऑलवेज increase at the higher rate in comparison to the consumption level. Okay, and this investment which is assumed by the Keynes, that is autonomous, whether this is always constant, that is not depend upon the level of income. Okay, and suppose it assume that this is 50. Okay, या इसको आप 50 मान लीजिए, चलिए ओके, तो दिस रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब आप ये तीन कंपोनेंट इज बेसिक टू ड्रॉ द एडीएस शेड्यूल। ओके, यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट को फॉलो किया वो एक तो
कंजम्पशन फंक्शन को फॉलो किया। कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीजेस, दैट हैव द पॉजिटिव रिलेशन, राइट स्टूडेंट्स। बट इफ इनकम इज जीरो कंजम्पशन नेवर बी जीरो, दैट हैव द सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इसको हम कहते हैं दिस इज अ ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज सी बार, राइट स्टूडेंट्स। और अकॉर्डिंग टू द assumptions of this theory, this investment that is autonomous investment. Autonomous investment का मतलब क्या है कि this remain constant whether income level is any amount, right? चलिए अब हमारा जो पर्पज है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी एंड एएस। ओके, तो जैसा कि आप एडी के बारे में जान चुके हैं कि एडी हैविंग द टू कंपोनेंट सी प्लस आई और एएस के कंपोनेंट है सी प्लस एस। इसका मतलब है कि सेविंग का कंपोनेंट हमको पता करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेट अस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ सेविंग एस। एस क्या होता है? एस मीन्स वाई माइनस सी, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। ओके, यानी कि इनकम में से कंजम्पशन लेवल को अगर आप घटा देते हैं तो यू विल गेट द सेविंग लेवल। जस्ट सी हियर, वाई में से सी घटाएंगे तो दिस इज -50, इसमें से घटाएंगे दिस इज -25, this is 0, then +25, okay, this here +50, then 250 में 175 घटाएंगे तो +75 and 300 में 200 घटाएंगे तो +100. This is the amount of saving. Okay, then अब आपका पर्पज क्या है? टू फाइंड द एडी एएस, वैल्यू ऑफ एडी एंड एएस। सी हियर, एडी मीन्स सी प्लस आई। ओके, यानी यू हैव द टू कंपोनेंट सी एंड आई, वी विल ऐड दीज टू कंपोनेंट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी। देन फर्दर एएस हैविंग द टू कंपोनेंट सी प्लस एस। ओके, सी हियर हमारा ये पर्पज एडी और एएस को निकालने का है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एडी एंड एएस, एंड टू चेक व्हेयर दीज एडी एंड एएस आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, सो फर्स्ट फाइंड एडी वैल्यू, सी एंड आई, इन दोनों कंपोनेंट्स को हमको ऐड करना पड़ेगा। दिस 50 एंड दिस 50 100, ओके, दिस 125, दिस 150, इन दोनों को जोड़ेंगे 175, इन दोनों को जोड़ेंगे 200, ओके, इन दोनों को जोड़ेंगे 225 और इन दोनों को जोड़ेंगे 250। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडी। इसी तरह से एएस को जोड़ेंगे, एएस मीन्स सी प्लस एस, सी एंड एस, इन दोनों को जोड़ेंगे। दिस 50 - 50 दैट इज 0, 75 25 दैट इज 50, 100 में से 0 ऐड करेंगे तो 100, देन इसको ऐड करेंगे तो 150, 200, 250 एंड 300। राइट स्टूडेंट्स, अब आपको इस शेड्यूल में ये चीज देखनी है कि ये एक दूसरे के बराबर कहां पे हैं। तो आप सी हियर, दिस एडी एंड दिस एएस, दिस इज 200 level, this is 200 level, here both are equal। इसका मतलब है इस लेवल पर AD is equal to AS है। इसका मतलब है दिस इज अ इक्विलिब्रियम लेवल, और दिस इक्विलिब्रियम लेवल एग्जिस्ट वेयर द लेवल ऑफ इनकम इज 200। ओके, दिस लेवल ऑफ इनकम इज 200 where AD and AS both are equal. It means this is our equilibrium level of income and this equilibrium level of AS and AT, right students? So ये आपका होल जो explanation है that is based on the schedule, AD-AS schedule, where we determined here both AD and AS are equal to each other at 200 level of income. It means this is the equilibrium level of income. This is equilibrium level of income, right students? अब इस पूरे ग्राफ को इस पूरे शेड्यूल को अगर ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करो, हाउ यू कैन फाइंड इट? सी हियर,
सिंपली दिस एक्स बार, दिस वाई बार, हियर लेवल ऑफ इनकम को आपने एक्स एक्सिस में दिखाया और इधर आप ए डी और ए एस, ए डी एंड ए एस दोनों को दिखाएंगे। मैं इसको ऐसे हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर आप इसको ग्राफ पेपर में इसकी वैल्यू के हिसाब से ड्रॉ करेंगे तो ए एस की वैल्यू आप देख रहे हैं एज इनकम। आपको मैंने यहाँ पर इसीलिए ए एस इज ऑलवेज इक्वल टू वाई। आप देख लीजिए वाई की वैल्यू 0, 50, 100 है। सेम वे ए एस की वैल्यू भी 0, 50, 100, इसीलिए दिस इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू ए एस। इसलिए जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो यू विल गेट दिस 45 डिग्री लाइन, दैट इज ए एस इज इक्वल टू इनकम लाइन। दिस इज 45 डिग्री लाइन, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद जब आप एडी को ड्रॉ करेंगे, दिस एडी स्टार्ट फ्रॉम द 100। ये मान लो आपका सपोज करो ये 50 है, दिस 100 है, 150 है, 200 है, 250 है एंड देन 300 है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। दिस इज 50, 100, 200, सॉरी 150, देन 200, 250, 300। ये लेवल ऑफ इनकम है आपका। ओके, अगर आप 100 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, जहां पर 200 लेवल ऑफ इनकम है। जस्ट सी हियर दिस, ये 200 लेवल ऑफ इनकम है। अब आप इसको, दिस इज एडी, तो ये आपका एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिला। दिस इज ई, दिस ई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट वेयर equilibrium level of income is determined, that is 200 level. Okay, and this whole diagram shows the determination of equilibrium level of income and output through ADAS approach. अब आपको इसको briefly explain करना है, explanation। तो मैं explanation में this is required to explain this ADAS approach. According to the schedule and diagram, the equilibrium level of income and output is determined at point E, where both AD and AS are equal to each other. Okay, this at this point AD is equal to AS. ये आप देख रहे हैं in the diagram also, in the schedule also. Okay, and the equilibrium level of income is 200, and where both AD and AS are equal to 200 level. Right, students? तो explain about this briefly in both the diagram and schedule. राइट, चलिए, दिस इज होल अबाउट द एडीएस अप्रोच। अब आपको आगे इसके एडीएस अप्रोच, अगला जो वीडियो है उसमें हम इसी एडीएस अप्रोच का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर सपोज दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट वेयर एडी इज नॉट इक्वल टू एएस, व्हाट हैपेंस। व्हाट हैपेंस का मतलब है कि इकोनॉमी, वेदर इट मे बी हियर, सपोज ये यहाँ पर हो सकती है इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमी यहाँ पर हो सकती है। राइट, तो अगर ये इकोनॉमी इस इक्विलिब्रियम से आगे या पीछे हो सकती है। अगर ये इस पॉइंट ई से ऊपर है, इट मींस एएस इज मोर देन एडी, ये आपको दिखेगा। या फिर अगर इकोनॉमी इस इक्विलिब्रियम से नीचे है, इट मींस एडी इज मोर देन एएस। राइट, तो दिस इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब अगर इसको आप डायग्राम में देखें, देखिए इधर हियर एडी और एएस, एडी एएस से ज्यादा है। इसका मतलब है in this portion this AD is more than AS. okay, और इस पोर्शन में क्या है, here AS is more than AD, यानी कि यहाँ पर AS ज्यादा है AD से। तो इन दो सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में करेंगे कि व्हाट हैपेंस इफ AD is not equal to AS, या AD is more than AS, या AD is less than AS. राइट, ओके स्टूडेंट्स। और इसके बाद इसमें एक चीज और रह चुकी है, जैसे कि अगर आप सपोज करो इसको अलग अलग इसमें ड्रॉ करते, कि जैसे आपने सपोज करो इस लेवल ऑफ इनकम पे मैंने यहाँ पर सी और आई को ड्रॉ नहीं किया है, आप इसको अगर इसी के साथ ड्रॉ कर सकते थे कि जैसे ये आपका कंजम्पशन लेवल कहाँ से शुरू हो रहा है, 50 से। तो अगर आप कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करते तो आपको कुछ इस तरीके का एक कर्व मिलता, दिस इज सी कर्व। ये ऑलरेडी हम चूंकि पढ़ चुके इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया। अगर आप इन्वेस्टमेंट को ड्रा करते तो ये 50 लेवल से शुरू होता, तो इस तरीके से आपका ये एक हॉरिजेंटल लाइन मिलती। दिस इज आई कर्व। तो ये आई कर्व है, ये सी कर्व है, दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 50 लेवल ऑफ एडी एंड एएस।
तो इस तरीके से ये इन दोनों का जो सम टोटल है सी और आई दैट गिव्स द एडी कर। ओके, तो हमारा जो अल्टीमेट पर्पस था कि एडीएएस कंपोनेंट के थ्रू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शो नहीं किया, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो ओके, थैंक यू सभी को। आई होप दिस होल कॉन्सेप्ट understand very well, and if having any doubt, please go through your text, and if any doubt you can ask freely. Thank you.